Hello students, this is our 7th video in the Comparative Political Analysis UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So we'll begin with the topic structures of power. तो स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में we'll be covering those. June 2015 का है फर्स्ट क्वेश्चन. इट वाज अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसमें वी हैव टू मैच द थिंकर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग कंसेप्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ल डूश, हाँ, ही हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ रिसेप्टर्स. उनका जो साइबरनेटिक्स और कम्युनिकेशंस थ्योरी है उसमें ही हैड गिवन दिस कंसेप्ट. ठीक है. फिर सैमुअल हंटिंगटन, he had given the concept of modernization. ठीक है. he considered modernization to be a multifaceted concept. उसके बाद में परेटो gave the concept of circulation of elites. फिर लास्ट में डेविड ईस्टन had given the concept of gatekeepers. उनकी जो systems theory है उसमें he had given this concept. ठीक है. So next question, June 2015 का है. Who among the following has coined the terms the stick, the deal and the kiss for influencing the decisions? So this was done by Keith Boulding. ठीक है. तो इनके बारे में we'll read थोड़ा सा. He had classified power into 3 categories. पावर के 3 कैटेगरीज यही थे. ठीक है. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टिक था दैट सिग्निफाइड द थ्रेट पावर. ठीक है. सो यू डू समथिंग आई वांट और आई विल डू समथिंग यू डू नॉट वांट. तो ये वाला आपने देखा होगा जो टोटलिटेरियन पॉलिटीज़ होती हैं वहाँ पे दिस इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ पावर, थ्रेट पावर. सेकेंड, द डील में क्या रहेगा? इट सिग्निफाइज एक्सचेंज पावर. ठीक है. सो यू डू समथिंग आई वॉन्ट एंड आई विल डू समथिंग यू वॉन्ट. तो ये रहेगा. जैसे इसका एग्जाम्पल विल बी टैक्सेशन सिस्टम्स. ठीक है. उसके बाद नॉर्मल हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है, पुलिसिंग लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, दे ऑल्सो वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल इटसेल्फ. ठीक है. फिर है इंटीग्रेटिव पावर, द किस. पावर बेस्ड ऑन लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, love, which makes people want to do things for you. तो the concept of nationalism, ये सब they are based upon the integrative power. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का ही है. अगेन दिस इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. वी हैव टू मैच द ऑथर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग टाइटल्स. सो फर्स्ट ऑथर इज सी राइट मिल्स. तो उन्होंने लिखा था द पावर एलीट. ठीक है. उसके बाद में विल्फ्रेडो परेटो, he had given the concept of circulation of elites. This is a very simple question. Then मॉस्का ने कंसेप्ट दिया था द रूलिंग क्लास का. Then we have Roberto Michels. He had given the concept of iron law of oligarchy. So next question December 2015 का है. Match the following. Again match the following question है. We have to match the authors with their corresponding works. सबसे पहले परेटो had given the concept of history is a graveyard of aristocracies. ठीक है. उन्होंने ये बोला था. ओके. फिर मॉस्का had given the concept of circulation of elites. फिर रॉबर्ट मिशेल्स अगेन आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. एंड ऑर्टेगा गैसेट ने दिया था द थ्योरी ऑफ द मासेस. नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2016 का है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द पॉलिटिकल एलीट्स. ठीक है. सो वी लुक एट द ऑप्शंस. पॉलिटिकल एलीट्स कौन कौन लोग होते हैं ये बताना है हमें. सबऑल्टर्न्स एंड मार्जिनलाइज्ड लीडर्स. तो दिस इज रॉन्ग. दे आर नॉट द एलीट्स. Rulers and subjects, no, subjects are not a part of the elites. Leaders and their followers are also not a part of the elites.
oligarchy and aristocracy. This is correct. ठीक है, they do form a part of the political elites. Now the next question July 2016 का है. Given below are two statements. So this is an assertion and reasoning question. The assertion is the iron law of oligarchy establishes that the ultimate decision making in all democratic organizations, including political parties, are done by a few leaders or a small elite group. ठीक है, तो उनके according to the iron law of oligarchy, the ultimate decision making is done by a small group. ठीक है, नेक्स्ट इसका रीजनिंग क्या दिया है. Decision making is a very complex process which necessarily involves the role of few who function on behalf of many. So both this, see, the first option, the assertion is correct, definitely, और इसका reasoning is also correct. So both the statements are true and the reason is the correct explanation for the assertion given. So the answer will be the first option. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2016 का है. Who among the following are European thinkers associated with the theory of political elites? ठीक है, तो we know that this is a very simple question. परेटो का पता है हमें, मॉस्का का भी पता है. However, Schumpeter was not related to the theory of elites and even Laswell was not related to this theory. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2016 का है. अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. वी हैव टू मैच द राइटर्स विद देयर करस्पॉन्डिंग कंसेप्ट्स. तो रॉबर्ट मिशेल्स ने क्या दिया था, वही आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. उसके बाद में जेम्स बर्नहम ने दिया था मैनेजरियल रेवोल्यूशन. सी राइट मिल्स ने दिया था द पावर एलीट्स, कंसेप्ट ऑफ पावर एलीट्स. फिर हैरोल्ड लैसवेल ने दिया था कम्युनिकेशंस मॉडल. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का है. हु हैज propounded the concept of power elite? So this was given by C. Reitmans. So this is a very simple question again. इस बुक का पब्लिकेशन डेट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा बिकॉज क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ जाता है कई बार. ठीक है, so keep that in mind. Next question, C. Wright Mills, The Power Elite 1956 offered a general analysis of elites in the entire capitalistic world. ये यूएसए के बारे में था. ठीक है, developed capitalistic world of North America and Western Europe. This is also wrong. Japan, this is also wrong. So the answer is the fourth option. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2019 का है. द सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स मोस्ट क्लोजली रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? रोटेशन ऑफ एलीट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ एलीट्स, रिटेंशन या रेस्टोरेशन. तो इसका वही आंसर है रोटेशन ऑफ एलीट्स. ठीक है, सो दिस वाज अ कंसेप्ट गिवन बाय विल्फ्रेडो परेटो. ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली जो पावर है इट कीप्स सर्कुलेटिंग अमंगस्ट द एलीट्स देमसेल्व्स. तो 2-3 टाइप के एलीट्स रहेंगे, उनके बीच में ही पावर सर्कुलेट होते रहेगी एंड इट डज नॉट रीच द कॉमन मैन. ठीक है, दिस वाज द concept of circulation of elites. So the next question was asked in November 2017. Who among the following provided an economic approach to elitism? So this was given by James Burnham. ठीक है, this is also a very simple question. Next, December 2018 का question है. Which of the following statements are correct with regard to the theories of elite? James Burnham proposed the concept of circulation of elites. तो this is wrong. परेटो ने दिया था ये concept. ठीक है, विल्फ्रेडो परेटो. Next, C. Wright Mills' triumvirate power group consists of political, economic, and managerial class. So this is again wrong. His triumvirate consisted of political, economic, and military class. ठीक है.
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मॉस्का emphasized on the personal characteristics of the elite. So this is correct. ठीक है, उन्होंने बहुत साइकोलॉजिकल एज वेल एज पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे ही हैड फोकस्ड अपॉन देम. उसके बाद में elite theory supports pluralism. So this is wrong. elite theory का बेसिक क्या है, द बेसिक concept in elite theory is that it is against pluralism. ठीक है, so this is the opposite which is given. So the answer will be only three will be the correct option. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स आर फ्रॉम इटली. तो विल्फ्रेडो परेटो ही वॉज फ्रॉम इटली. फिर मॉस्का वॉज ऑल्सो फ्रॉम इटली. रॉबर्ट मिशेल्स नहीं थे इटली के, ही वॉज जर्मन थे शायद. एंड सी राइट मिल्स वॉज फ्रॉम यूएसए अमेरिका. ठीक है, सो द आंसर विल बी द फर्स्ट एंड द सेकंड. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2023. दिस इज़ अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. मैंने इसमें क्या किया है, डायरेक्टली रिटन द आंसर्स इन फ्रंट एंड आई हैव नॉट रिटन द क्वेश्चन. तो वो आपको इससे इतने से आपका काम हो जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास. सो दिस बुक वॉज रिटन बाय रेमंड एरन. ठीक है, फिर द पावर एलीट करके जो बुक है दैट वाज रिटन बाय सी राइट मिल्स. फिर द मैनेजरियल रेवोल्यूशन वाज रिटन बाय जेम्स बर्नहम एंड द रूलिंग क्लास वाज गिवन बाय मॉस्का. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगस्त 2024 का है. दिस इज अगेन अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आई हैव डायरेक्टली रिटन द आंसर्स इन फ्रंट. थ्योरी ऑफ द मासेस वाज गिवन बाय ऑर्टेगा गैसेट. मैनेजरियल रेवोल्यूशन वाज गिवन बाय जेम्स बर्नहम. मास माइंड का कंसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट मिशेल्स. एंड द रूल ऑफ एंटिसिपेटेड रिएक्शंस वाज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिच. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2018 अगेन मैच द फॉलोइंग एंड आई हैव रिटन द आंसर्स इन फ्रंट. रॉबर्ट डाल ने दिया था पॉलीआर्की पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन. ठीक है, दिस वाज द नेम ऑफ हिज बुक. देन SM लिपसेट ने they had written the book Political Man. फिर कार्ल श्मिट ने लिखा था लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी. एंड रॉजर चार्ल्टन ने लिखी थी पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है, दिसंबर 2018 का. दिस इज अगेन मैच द फॉलोइंग. इसमें वी हैव टू मैच द बुक्स विद देयर करस्पॉन्डिंग ऑथर्स एंड आई हैव रिटन द आंसर्स डायरेक्टली. फर्स्ट क्या है, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज. दिस वाज अ बुक रिटन बाय रॉबर्ट मैकेंजी. फिर पॉलिटिकल पार्टीज वाज रिटन बाय रॉबर्ट मिशेल्स. कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन वाज रिटन बाय जीन ब्लॉन्डल. फिर कंपैरेटिव पॉलिसीज क्वेस्ट फॉर थ्योरी वाज रिटन बाय जेम्स ए बिल एंड रॉबर्ट हार्टग्रेव्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है. सो आई हैव रिटन द आंसर्स यहाँ पे. A.V. डाइसी ने कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ दिया था. ठीक है, फिर सैमुअल हंटिंगटन had given the concept of political decay. Gabriel Almond had given the concept of enemy interest groups. And Marbury and Madison जो केस था that had given the concept of judicial review. ठीक है, next question. Modernization is commonly understood as being analogous to which of the following? तो वेस्टर्नाइजेशन, हाँ दिस इज करेक्ट. एनालॉगस मतलब सिनोनिमस, इट इज सेम एज, किस चीज़ के इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं. तो मॉडर्नाइजेशन इज इक्विवेलेंट टू वेस्टर्नाइजेशन. ठीक है, यूरोपनाइजेशन भी ठीक है. राइज ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम ये भी करेक्ट है. और उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. Next, so that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful.